is very important from forensic point of view because particularly in the rape cases, forensic expert asks the victim that she is virgin or not. So let's see what are the important lines. This is a term which is commonly comes in the BCQ question. What is the virgo intacta? Defloration is another term which is very commonly used, is depriving of virginity. So these terms, virgo intacta, defloration, is commonly used in medical certificates. So if a woman is virgin or not arises in, now here is the questions: cases of divorce of nullity of marriages on the plea of impotence of husband is a court case. Particularly it is the proceeding of this case is conducted in the civil courts. Defamation of woman, someone says that she is corrupt or not corrupt. So this is also a defamation of woman. So she sue the person in a civil court. And the third one, rape. Rape is not a medical diagnosis, it is a legal term. And these cases are, the proceedings of these cases are conducted in the criminal courts. So these are the common things. Signs of virginity, you people is very well known about these things. Particularly, you have studies these things in the anatomy and embryology. Signs of virginity, the most important thing: the breast, nipples, genitals, labia, female genital, foreshead. So this foreshead word is a very important. This term is a very important during the examination of a victim who say that she has been raped or she has been misused. The foreshead. Foreshead is a very important thing on which a lady doctor can say that the rape or the sex has done or not. So it is injured during the childbirth or rape on children. Vagina is narrow and tight and firm and walls on approximately mucosa is in rigorous reddish. So rigorosity is another important thing. If there is an absence of rigorosity, then the lady doctor says that something is wrong. Hymen, everybody knows that, every doctor knows that. What is the importance of hymen? So here a question arises, what is the false virgin? This is another BCQ question. The various type of hymen, ये आपने खुद पढ़ना है, देखना है, इसकी diagrams भी आपने खुद देखनी है. अब इसमें दो चीजें हैं, फेम्ब्रिएट वर्सेस ट्रॉन. जब एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट इन लेडी का एग्जामिन लेडी करेगी और वो लेडी जो एग्जामिनर होगी, दैट लेडी इज नोन एज द फॉरेंसिक एक्सपर्ट और द वुमेन मेडिको लीगल ऑफिसर. When she examined the victim, first of all, she has to watch what is there irregularity, usually posteriorly, extend to vaginal wall, mucous membrane damage or not. So after the examination of the genitalia of the victim, she will easily write down the findings. ये ऊपर एक लाइन लिखी है, दिस इज द मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ वर्जिनिटी. ये नहीं ऐसा, ऐसा नहीं है, पहले था अब नहीं है. मल्टीपल एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें ये चीज नेचुरली भी ट्रॉन हो सकती है और ये एक्सीडेंट में भी ट्रॉन हो सकती है. इंट्रोडक्शन ऑफ थंब टू ब्रिंग अ फास्ट चार्ज ऑफ रेप, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग ना. एक है उसने एक एलिगेशन लगाया कि आई हैव बीन रेप्ड बाय समवन और उसने खुद अपने आप को जो है वो कैसे प्रेजेंट किया है. इंट्रोडक्शन ऑफ अ थंब. तो ये लेडी डॉक्टर जो WML होगी, वुमेन मेडिको लीगल ऑफिसर या फॉरेंसिक एक्सपर्ट, वो बताएगी कि नहीं, दिस इज अ फॉल्स थिंग. इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बाय डॉक्टर्स, क्रिमिनली इन्वॉल्व जो डॉक्टर्स होते हैं पैसे लेके ऐसा करते हैं. आर्टिफिशियल डायलिटेशन ऑफ वजाइना है बाय फॉरेन बॉडी सच एज द सोला पिथ. पिथ मैंने आपसे पहले भी कहा था, सुई को कहते हैं बारीक. द रेंडर यंग गर्ल्स फिट फॉर सेक्सुअल एक्ट बाय. डिजीज है अल्सरेशन ऑफ डिप्थीरिया. बहुत सी डिजीजेस ऐसी होती हैं, दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट थिंग. अ लेडी सफर्ड फ्रॉम डिप्थीरिया, उसके अंदर उसकी जो फाइंडिंग होगी वो मिमिक करेगी कि दैट शी हैज बीन रेप्ड. एक्चुअली ऐसा होगा नहीं.
तो ये डॉक्टर ही डिफरेंशिएट करके बताएगा कि either she is raped or not, or she is suffering from diphtheria. Clots of menstrual blood passing through the vagina, अब अजीब सी बात है, तो अगर menstrual fluid के अंदर या menstrual blood के अंदर अगर वो आती है एग्जामिन कराने के लिए और कहती है कि आई हैव बीन रेप्ड, तो भी आपने ये डिफरेंशिएट करना कि नहीं दिस इज द मेंस्ट्रुअल ब्लड, तो कैसे पता चलेगा नॉर्मल ब्लड का और मेंस्ट्रुअल ब्लड का? इफ यू नो द फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लड ना, नॉर्मल ब्लड में और मेंस्ट्रुअल ब्लड में डिफरेंशिएशन क्या है? बड़ी सिंपल सी डिफरेंशिएशन ये है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड के अंदर एपिथेलियल सेल्स आएंगे उस पूरे ट्रैक के, फ्रॉम यूट्रस टू सर्विक्स टू वजाइना, और जो नॉर्मल ब्लड होगा उसके अंदर तो ये चीजें नहीं होगी। अगर उस मेंस्ट्रुअल ब्लड जो ब्लड है जो उस वक्त उसे मिलता है और उसके अंदर इफ देयर आर देयर इज इफ देयर इज if there are if there are epithelial cells are present, you should can say that this is the menstrual blood, this is not a normal blood. और अगर epithelial cell नहीं है और normal blood है तो you can say that something is wrong. ये चीज अगेन है वियरिंग ऑफ टेम्पेक्स टाइप सैनिटरी टॉवल्स, ये खुद आप लोगों ने पढ़ना है, ये मैंने नहीं एलोबरेट करना है. इन मैनुअल इंटरफेरेंस titter by a second party of masturbation, tears are not a usual findings. Next. Signs of loss of virginity, अभी बात हुई कि डिफ्लोरेशन क्या है, तो इसमें क्या क्या फाइंडिंग होंगी? अगर virginity, if the virginity is lost, then what will you find in a lady? With an intact hymen, a woman may be a true virgin. That is, the hymen is intact and the woman has had no sexual intercourse. नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ लेडीज के अंदर जो हाइमन होती है वो इलास्टिक उसके अंदर इलास्टिसिटी इतनी होती है, उसी लेडी को हम कहते हैं फॉल्स वर्जन, वो टीयर नहीं होती. ये अनदर थिंग ये है डिलीवरी में इंपॉर्टेंट चीज ये है फ्रॉम द फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू कि ये डिलीवरी एंटीमॉर्टम डिलीवरी है या पोस्टमार्टम डिलीवरी है. एंटीमॉर्टम डिलीवरी उस वक्त व्हेन शी वाज लिविंग, व्हेन शी वाज अलाइव, और पोस्टमार्टम डिलीवरी उस वक्त होती है जब वो डेड हो जाती है. मैंने पहले भी आपको बताया था कि डेड लेडी के अंदर जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है तो कंट्रक्शन की वजह से भी डिलीवरी होती है, लेकिन वो फिटस डेड ही होगा. The subject requires medical legal opinion more frequently than pregnancy. ये ज्यादा important है. Examination for delivery is required in the following condition. डिलीवरी की कोई कंप्लेन करता है, एक लेडी है वो कहती है कि I have delivered such baby and that person is the father of that baby. अब वो फादर ऑफ दैट बेबी कहता है, जो उस पे एलिगेशन है, कहता है जी मैं तो इस लेडी को जानता नहीं, आई डोंट नो हु शी इज एंड हुज चाइल्ड इज. तो फिर वो क्या होगा, वो कंप्लेन जाएगी, होते होते पुलिस के थ्रू करते कोर्ट से होती हुई लेडी डॉक्टर के पास आएगी. लेडी डॉक्टर जब लेडी का एग्जामिन करेगी तो वो कहेगी कि इसने तो कभी डिलीवर किया ही नहीं है, इसकी तो ईच एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल है और कभी इस प्रोसेस इसकी गुजरी ही नहीं है, ये तो सिंपल एलिगेशन है. तो फिर फर्दर तो बहुत कुछ होगा, वो डीएनए भी होगा, बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग ये भी है. तो अबॉर्शन है, इन्फेंटिसाइड है, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ है. और अक्सर औकात ये है कि एक लेडी कहती है कि वो छुपाना चाह रही है, उसने बेबी को डिलीवर किया है और बेबी को डिलीवर करके डिस्कार्ड कर दिया है, मतलब मार दिया है इन्फेंटिसाइड के अंदर. कहती है जी मैंने तो कभी बेबी डिलीवरी नहीं किया. तो उसमें वो तमाम फाइंडिंग्स मिलेंगी जो डिलीवर्ड वुमन के अंदर मिलती हैं. In connection with the legitimacy of supposititious children, in libial action, in attempted blackmail or attempted compulsory marriage. आप समझते हैं ना, ब्लैकमेल करने के लिए ये चीजें यूज होती हैं. अटेम्प्टेड कंपल्सरी मैरिज के लिए ब्लैकमेल किया जाता है कि ये ऐसा था और ये था और ये बच्चा तुम्हारा है ना, यू हैव टू मैरी विथ मी. साइंस ऑफ रिसेंट डिलीवरी एंड लिविंग, ये फिर आप खुद देखेंगे कि रिसेंट डिलीवरी के अंदर जो साइंस होंगे वो क्या होंगे, और फिर इंटरमीडिएट साइंस क्या होंगे, फिर रिमोट साइंस क्या होंगे. साइंस आर रीसेंट डिलीवरी ऑफ फुल टर्म आर वन जनरल बैंक्वेट लुक, दैट इज द पेल एग्जॉस्टेड, इल लुकिंग, आईज आर संकन. साफ पता चलेगा ना कि बड़े से प्रोसेस से गुजरेगी, तो उसकी जनरल फिजिकल बॉडी ही बताएगी जनरली फिजिकली क्या चेंजेस आती हैं. After pain, sometimes there is a characteristic smell in the house of the poor due to the discharge of delivery. These signs disappear in 3 to 4 days.
उसके बाद ये तमाम चीजें देखनी है, एब्डोमेन इज फ्लैसिड होगा, स्किन रिंकल्ड होगी, लीनिया एल्बिकेंट्स होंगे आर प्रेजेंट. दिस इज नॉट अ श्योर साइन, लेकिन दिस इज वन ऑफ द साइन. यूट्रस की पोजीशन क्या है? अगेन फॉरशेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज अ पार्ट ऑफ द जेनेटेलिया. सर्विक्स की क्या पोजीशन होगी? सॉफ्ट एंड पेटुलस एंड इट्स एजेस मे बी torn और lacerated transversely. लूकिया, लूकिया उस डिस्चार्ज को कहते हैं जो इसमें से होता है. 3 किस्मों का लूकिया है. लूकिया सिरोजा भी है, लूकिया रूब्रा भी है, और लूकिया एल्बा भी है. एल्बा मींस वाइट और रूब्रा मींस रेड. सिरोजा मींस जिसका कोई कलर नहीं होता, सीरम लाइक. बायोलॉजिकल टेस्ट विल बी पॉजिटिव आफ्टर recent delivery. No one sign is conclusive. Earlier the examination, the better it is. A strong woman sign disappears high and a few days. रिसेंट डिलीवरी के अंदर, डेड के अंदर, अब वो था लिविंग के अंदर, ये है साइंस ऑफ रिसेंट डिलीवरी इन डेड. तो ब्रेस्ट व्हेन कट ओपन में शो मिल्क अगर है, बड़ी सिंपल सी चीज है ना. ड्यूरिंग ऑटोप्सी अगर आप देखना चाहते हैं कि ये जो डेड लेडी मरी है ये डिलीवरी के बाद मरी है, डिलीवरी के दौरान मरी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये क्या होगी कि कट breast when cut open may show milk. Uterus when cut open is flabby and large. Interior is rough and blood clots are present. ये तमाम चीजें होनी चाहिए ना, तो ये होंगी अगर उसकी ऑटोप्सी हो रही होगी. और ये तमाम चीजें नहीं होंगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये किसी और वजह से मरी है, ये इस वजह से नहीं मरी है. रिमोट डिलीवरी के अंदर, लिविंग के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी? इज डिफिकल्ट आफ्टर 6 days. 6 days के बाद इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू से दैट शी हैज डिलीवर्ड अ बेबी और नॉट. ब्रेस्ट आर सॉफ्ट एंड पेंडुलस, वजाना इज कैपिसिशियस. हाइमेन के अंदर है. तमाम ये चीजें देखनी है आपने कि क्या क्या चेंजेस आएंगे. आपको एक कंसेप्ट होना चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप समझ क्या रहे हैं और आपने करना क्या है. इसकी इंपॉर्टेंस यही है मेडिकल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने उस एलिगेशंस को क्लियर करना है. यू हैव टू कंफर्म दैट वेदर शी इज राइट और रॉन्ग, उसकी वो एलिगेशन सही है या गलत है. Most of the above signs may be simulated by passage of a large fibroid tumor. अब अजीब सी बात है, फिब्रोइड जो होते हैं, फिब्रोइड ट्यूमर जो होता है, ये there are 3 layers of the uterus, इंटाइमा, और उसके अंदर फिर मिडल, फिर बाहर. ये अंदर की तरफ से ये ग्रेप्स लाइक ट्यूमर्स होते हैं. तो अगर ये भी आएंगे तो हमें तो ये लगेगा कि डिलीवरी हो चुकी है, वहां से डिलीवर हो रहा है. रिमोट डिलीवरी इन द डेड के अंदर यूट्रस कैविटी विल हैव कॉनकेव वॉल्स. ऑस का मतलब होल होता है. ऑस इज लार्ज, रेगुलर एंड पेचुलस. ये अब आपने खुद पढ़ना है, खुद समझना है और खुद तस्वीरें देखनी है. बहुत सी चीजें मैं आपको यहाँ एलोबरेट इसमें नहीं कर सकता तो जब तक आप खुद अंडरस्टैंड नहीं करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द एनाटॉमी ऑफ द जेनिटलिया, physiology of the genitalia, the biochemistry of the genitalia. First you should know the normal, then you will understand the abnormal. And when you understand the normal, then it's a very easy to differentiate the whether it's a normal or abnormal.